السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واتباعہ واولیاء امتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج میں محمد احمد ریڈ کرسچن سوسائٹی آف انڈیا کی جانب سے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی اس عظیم عمارت میں اور اس عظیم آڈیٹوریم میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے فرحت و انبساط سے سرشار ہوں۔ عزیزان من، یہ گھڑی آج ہمارے لیے انتہائی دکھ اور تکلیف کی گھڑی ہے اور صبر کا موقع ہے، اور ساتھ ہی اس عظیم مجاہد اور اس عظیم معمار وطن کو یاد کرنے کا دن ہے جس نے آزادی اور غلامی دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ نوجوان جس نے کبھی انگریزوں کی توپوں کی دھمک کو محسوس کیا تھا اور ساتھ ہی ایمرجنسی کی زنجیروں کو توڑ کر کے ہندوستان میں وہ کچھ کرنے کا حوصلہ اور ہنر دکھایا کہ وہ جہاں بھی رہا اپنے اصولوں پر رہا، جس بھی پارٹی میں رہا اپنے اصولوں پر رہا، اپنے ضمیر سے کبھی اس انسان نے سودا نہیں کیا۔ اس کا نام الیاس اعظمی ہے اور دنیا اسے الیاس اعظمی کے نام سے جانتی، مانتی اور پہچانتی ہے۔ وہ انسان اپنے مالک اور خالق کا اتنا مقرب تھا کہ جب اس کی آخری گھڑی تھی تو اس کے تمام خاندان کے لوگ نہ صرف اپولو ہاسپٹل میں موجود تھے بلکہ سنجے سنگھ صاحب، جنہوں نے اس نوجوان کے ساتھ اور اس بزرگ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے سنگھرش کیا تھا، اس تکلیف اور اس آخری سانس کی گھڑی میں وہ بھی ان کے ساتھ بنفس نفیس موجود تھے۔ سنجے بھائی، میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام کرتا ہوں، اور ساتھ ہی جس ایمانداری اور جرت مندی کے ساتھ آپ نے ہمیشہ الیاس اعظمی کو یاد کیا، چاہے وہ اپولو میں ان کا ایڈمیشن کا رہا ہو، اور آپ نے اپولو کے اسٹاف کے ساتھ جس جرت کے ساتھ کہا کہ یہ میرے والد آج یہاں پر آپ کے یہاں داخل علاج ہیں، ان کے علاج میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ میں ارشد پریوار کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ جناب یوگیندر یادو صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ سنگھرش کے ساتھیوں میں یوگیندر یادو کا ایک عظیم نام ہے، جنہوں نے جب عام آدمی پارٹی پر سنکٹ کا سمے آیا، جب پارٹی ٹوٹے گی یا بچے گی، اس میٹنگ میں یوگیندر یادو صاحب موجود تھے اور الیاس اعظمی صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ باتیں بہت کچھ ہیں، کہی جا سکتی ہیں اور کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عام آدمی پارٹی کو الیاس اعظمی کے ساتھ بنایا، چلایا، سجایا اور سنوارا۔ اور آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے، ابھی بیتے دنوں جب میں وطن سماچار کے سمپادک کے طور پر میں نے کیندری منتری کوشل کشور کا انٹرویو کیا تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ الیاس اعظمی صاحب کے کہنے ہی پر میں نے عام آدمی پارٹی یعنی پولیٹیکل ونگ کے پرستاوک کے طور پر میں سامنے آیا تھا اور میں نے پارٹی کا پرستاو پیش کیا تھا۔ تو وہ عظیم انسان جس نے لوہیا موومنٹ کو آگے بڑھایا، جس نے ان تمام معماروں کے ساتھ اور ملک کے تمام عظیم سپوتوں اور شہیدوں کے ساتھ کام کیا، اور ہمارے ساتھ کیسی تیاگی صاحب آ چکے ہیں اس سبھاگار میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ کیسی تیاگی صاحب کے ساتھ بہت سارے منچوں پر الیاس اعظمی صاحب کا آمنا اور سامنا ہوا، کئی بار آپس میں خیالات کے متبھید بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود من بھید کا کبھی موقع نہیں آیا۔ یہاں پر محمد ادیب صاحب موجود ہیں، پورو راجیہ سبھا سانسد ہیں۔ ادیب صاحب کے ساتھ بھی الیاس اعظمی صاحب کا ایک گہرا راستہ اور گہرا رابطہ تھا، اور ساتھ ہی جمشید زیدی صاحب موجود ہیں جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے ذمہ داروں میں سے ہیں۔ آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ انقلاب ایران کا سب سے بڑا سمرتھک اگر بھارت میں کوئی بن کر کے ابھرا تھا تو وہ الیاس اعظمی ہی تھے، گرچہ کہ جب صدام حسین کے ہندوستان کے مسلمان صدام حسین کی تحریک کے دیوانے ہوئے جا رہے تھے تو اس وقت الیاس اعظمی نے آ کر کے یہ کہا تھا
कि तुम्हारा कागजी शेर ये 2 दिन भी मुकाबला नहीं कर पाएगा, और अंत में हश्र वही हुआ। इलियास आज़मी की नजर आज पर नहीं थी, बल्कि आने वाले 100 साल 50 साल वो देखते थे और समझते थे, और कभी भी अपने वसूलों से, चाहे वो समाजवादी पार्टी में रहे, चाहे वो आम आदमी पार्टी में रहे, चाहे वो बसपा में रहे, चाहे वो बीपी सिंह साहब के साथ रहे, कभी भी उस इंसान और उस मर्द मुजाहिद ने अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। अजीजान मन, यह आपको जानकर खुशी होगी कि वो इंसान एक तरफ मौदूदी तहरीक का हामी था, तो दूसरी तरफ अल्लामा इकबाल की फरासत और उनकी ज़हानत का सबसे बड़ा अलमबरदार और वकील भी था। वो कहता था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। वो कहता था कि हम गरीबों, मजदूरों, बेकसों, बेसहारा लोगों, यतीमों, बेवाओं और कमजोरों के उत्थान के बगैर तरक्की नहीं कर सकते हैं। वो ये मानता था कि इस मुल्क में अगर अल्पसंख्यकों को रहना है, अकलियतों को रहना है, तो वो दलितों, शोषितों, वंचितों और समाज के उन तमाम पिछड़े वर्गों के साथ रहना होगा जो इस समाज में अलग धारे यानी मुख्य धारा से अलग कर दिए गए हैं। बातें बहुत कुछ कही जा सकती हैं और की जा सकती हैं, लेकिन अंत में मैं यही बात आपसे कह करके जुदा होना चाहता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। इलियास आदमी जैसी शख्सियतें रोज रोज नहीं पैदा हुआ करती हैं। यहाँ पर हमारे उस्ताद, हमारे मुशफिक प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब भी मौजूद हैं। मैं सर आपकी बारगाह में सलाम पेश करता हूँ। आपने जिस अंदाज में इलियास आज़मी साहब को याद किया, खास तौर से मुंबई की कॉन्फ्रेंस में, वो यकीनन लायक दाद और लायक दीद भी है। यहाँ पर हमारे एक और उस्ताद एडवोकेट शाहिद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, यहाँ पर एएमपी के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे दोस्त राहिल भाई मौजूद हैं, और वो तमाम लोग जिनका इस प्रोग्राम को बनाने, सजाने और संवारने में किसी तरह का योगदान रहा है, दामे दिरमे कदमे सुखने, मैं उनकी बारगाह में सलाम अकीदत पेश करता हूँ। दोस्तों, कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये बात हम लोगों को समझनी होगी कि अंत में कि सियासत के सीने में दिल नहीं होते हैं, लेकिन इलियास आज़मी एक ऐसा इंसान और एक ऐसा मुजाहिद था जिसके सीने में एक धड़कता हुआ दिल था। हमारे बीच इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सदर, सेंटर के रूहे रवां और जिनके खून से इस सेंटर की इबारत है, जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब मौजूद हैं। मैं आपकी बारगाह में सलाम पेश करता हूं और इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करता हूं। तो मैं ये बात कह रहा था कि इलियास आज़मी साहब के सीने में एक ऐसा दिल मौजूद था जो हमेशा हर जरूरतमंद के लिए धड़कता था, और आम आदमी पार्टी तहरीक में जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने तन, मन, धन और साथ ही संघर्ष का जो रास्ता अपनाया, उसे न संजय भाई भी भूल पाएंगे और मैं न समझता हूं योगेंद्र यादव साहब भूल पाएंगे। बातें रहीं, अलग हुए, रास्ता बदला, लेकिन दिल मैं समझता हूं आज सब लोगों के एक हैं, मन एक है। मतभेद हो सकते हैं और मतभेद होना जरूरी है, लेकिन मनभेद होने की गुंजाइश हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया आनी और जानी है। आज इलियास आज़मी नहीं है, कल शायद हम में से कोई और ना हो, परसों कोई और ना हो, ये सिलसिला जाने का लगा रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से सभी से ये बात अपील करते हुए जुदा हो रहा हूं कि मन की दुई को हमें भुला करके मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, भाईचारे के साथ एक दूसरे को अपना करके आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, ऑन द डाइज और ऑफ द डाइज जितने भी लोग हैं, सब हमारे लिए मेहमान हैं, सब हमारे लिए मुकर्रम हैं, और उर्स कमेटी के चेयरमैन हमारे बड़े भाई इस्माइली साहब जुड़ चुके हैं। मैं आपका भी दिल के अथाह गहराइयों से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। तो जितने भी लोग हैं, हर इंसान एक दूसरे से आगे है, और खास तौर से जो नौजवान हैं, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की ये चिंता रहती है। कई बार मैंने देखा है, कई बार उनके साथ मुल्क के सरबराहाने ममलकत के साथ मिलने का मौका मिला है, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के साथ। तो जिस तरह वो नौजवानों को हौसला देते हैं, जिस तरह से वो नौजवानों को हिम्मत देते हैं, वो यकीनन लायक दाद और लायक दीद है। अभी हाल ही में सऊदी एम्बेसीज के कुछ लोगों के साथ मिलने का सिराज साहब के साथ मौका मिला, तो वहां पर भी आपने जिस अंदाज में नौजवानों की वकालत की और जिस अंदाज में नौजवानों को बढ़ाने की बात कही, सिराज साहब आप जैसे लोग यकीनन मैं समझता हूं कि इस मुल्क में ना के बराबर हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं वो मंच पर खुद हों, लेकिन सिराज साहब को अनेकों मौकों पर मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो चाहते हैं कि मंच पर नौजवान तबका हो,
मुल्क का वो तबका हो जो कल मुल्क की क़यादत कर सकता है। सिराज साहब का इस प्रोग्राम में हर तरह से सहयोग भी रहा। मैं सिराज साहब आपकी बारगाह में सलाम पेश करता हूं और वो तमाम लोग जो प्रोग्राम हॉल में हैं, मैं सबकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोग मंगल के दिन अपना बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल करके तशरीफ लाए। दोस्तों, इलियास आदमी साहब के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन एक मौके पर उन्होंने मुझसे ये बात कही थी, इसलिए मैं आपकी बारगाह में वो बात पेश करता हूं। शायद ये बात उन्होंने कम लोगों से कही हो कि जब उनका आखिरी वक्त आया, उससे साल डेढ़ साल पहले की बात है, इलियास आदमी साहब ने मुझे फोन करके बुलाया कि यार तुम कहां हो। जिस शफकत के साथ, जिस मुअद्दत के साथ इलियास आदमी साहब पेश आते थे, मैं समझता हूं कि उसकी नजीर मैं ढूंढ कर भी नहीं ला सकता हूं, क्योंकि इलियास आदमी साहब का वो मामला था कि बगैर खाना खिलाए आरिफ मोहम्मद खान की तरह किसी को घर से वापस नहीं भेजते थे। बेहतरीन अंदाज में इलियास आदमी साहब अपने मेहमानों का स्वागत करते थे, लोगों को बुलाते थे। हमेशा एक खादिम उनके साथ होता था जो लोगों की ज़ियाफत करता था। तो उस मौके पर उन्होंने अकेले बंद कमरे में बुलाया और कहा मैं कुछ बात करना चाहता हूं। तो बोले लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने कहा भाई आप क्या कह रहे हैं? तो बोले नहीं, मुझे जन्नत की सैर करा दी गई है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और मुझे जन्नत में मेरी अहलिया से भी मुलाकात करा दी गई है। तो इलियास आदमी साहब ने अपनी जिंदगी में इस दुनिया में रहते हुए उस दुनिया के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सैर कराई थी। वो अक्सर कहा करते थे कि इंशाअल्लाह मेरा हश्र नेक लोगों के साथ होगा, सालेह लोगों के साथ होगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अपनी आंखों से अपनी जन्नत दिखा दी थी। इलियास आदमी साहब कई मौकों पर कई ऐसी बातें करते थे जिनको बताने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को उनके साथ बहुत करीब से रहने का मौका मिला काम करने का, उनमें से मैं एक गुनहगार मैं भी शामिल था।